Failure is a stepping stone to success. If you fail, you have to analyze why did you fail and then how can you take that corrective action. प्रधानमंत्री जी के पास भी इतना ही टाइम है जितना हमारे पास है एंड मोदी जी से अगर हम इंस्पिरेशन लें तो उनसे बड़ा तो कोई इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम्पल आई थिंक है नहीं. The way he manages so many programs in a day. India acknowledged you in the right context. You are a Wonder Woman. That was long way back, 5 years back, March 2019. उसके बाद बहुत चीज़ें change हो गई हैं. Tend to take risk in your life. If you achieve, if you win, you will lead. If you win, you will lead. And if you lose, you can guide. Hours in a week one should work, or 90 hours in a week one should work. And how do we handle our family life? Somebody that some quote got very much viral. How much time will you stare at your wife? और बाकी जनता तो बहुत है जिनको कोई मतलब नहीं है. आप अगर सक्सेस पालोगे तो वो ताली बजाएंगे, अगर आप फेल हो जाओगे तो वो कहेंगे अरे ठीक से ट्राई नहीं किया होगा, या ये तो इसकी तो बस की नहीं था, तो ये गए ही क्यों, क्या इन्हें पता नहीं था. तो माई पॉइंट इज कि वाई शुड वी बॉदर अबाउट दोज पीपल. बच्चों से भी कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ बिकॉज दे आर ऑफ द यंग जनरेशन. So they use, my daughter especially, she is in class 7. She uses many terms which I don't know, and I think I will only get to know through her. Gen Z terms. Yes. Wherever I have gone, so I always tried कि I should be as an officer accessible to people. क्योंकि सबसे बड़ा एक जो ग्रीवांस रहता है लोगों का कि अफसर से मिला ही नहीं जा पा रहा है, कि अफसर से मिल ही नहीं पा रहे. लाइफ का तो मैं नहीं बोलूँगी कि शो एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ. देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स विच मे नॉट बी नोन इन सोशल मीडिया एंड विच आई विल नेवर लाइक ऑल्सो to be on social media. So it is not like that. What is available on social media, not everything is right, not everything is with correct intention. We have to demarcate and see only the stuff which is genuine, which is positive, which is inspiring, which is motivating, and which is authentic, which is not the hate propaganda. That only we should post, we should share, we should see. So hello ma'am, how are you? Hi, I'm doing great. Thank you so much. So how was your day? Day was very nice. Occupied. So if you remember me, last year I invited you to IIT Kanpur for an event. Yes, I visited the prestigious institute of IIT. Yes. Okay, and मैंने बोला था आपको कि one day we'll meet in Delhi. So here we are shooting our episode. Yes. Thank you so much. Okay, so let me tell my audience. Today we have one of the most popular and passionate bureaucrat of the country, and she has been recognized by Niti Aayog as a woman transforming India, and by Twitter India as a web wonder woman. So she is a Wonder Woman indeed. You will get to know when I will ask her about her life, her stories and her journey. Thank you so much. So thank you so much ma'am for giving us your time. So ma'am, to begin with your journey, jitna I know that your decision to join civil services was against your family's will. वो लोग चाहते थे कि आप corporate में job करें, but आपने civil services चुना. तो could you please take us through that journey and the challenges जो आपने face किए while preparing for the UPSC? ऑलरेडी एक्चुअली इसके बारे में वैसे मैंने पब्लिकली प्लेटफॉर्म्स पे बोला है, सोशल मीडिया में भी मैंने बोला है, मेरे स्पीचेस में भी है. बट सिंस यू हैव आस्क्ड दिस, सो जस्ट ब्रीफली मैं बताना चाहूँगी कि मेरी फैमिली पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से प्राइमरली बिलोंग करती है. मेरे फादर साहब ने वहाँ अपनी ग्रेजुएशन की, पापा ने सीए की पढ़ाई भी कुछ हद तक वहाँ पे की, कुछ दिल्ली में आके की. तो बाद में आफ्टर मैरिज ही सेटल्ड हिज सीए प्रैक्टिस इन दिल्ली, और इस कारणवश मेरी जो एजुकेशन है और मेरा बर्थ है वो दिल्ली में ही हुआ. तो मैं जब एक्चुअली ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में थी तो आई वाज आल्सो डूइंग सीएस, क्योंकि पापा सीए हैं, बड़ी दीदी सीए कर रही थी. तो एक कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी फैमिली में था, और पापा को छोड़ के बाकी सारे ही हमारी फैमिली के रिलेटिव्स, पापा के जो सब सिबलिंग्स हैं, दे ऑल आर इन बिजनेस. तो बिजनेस क्लास फैमिली है, और हरियाणा में ही ज़्यादातर सब लोग रिश्तेदार हमारे बेस्ड हैं. तो उस टाइम में यही था कि मैं भी कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करके अपना एक कहते हैं कि एक अच्छा करियर और एक अच्छी लाइफ मैंने और मेरे पेरेंट्स ने सोचा था कि हो सकती है. इसीलिए मैंने सीएस भी साथ में मैं कर रही थी, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स.
तो जब ये रुझान मेरा सिविल सर्विसेज में हुआ, जब मैं ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट होने वाला था, और इनफैक्ट मेरी प्लेसमेंट्स भी 2 अच्छी एमएनसीज में हो गई थी थ्रू माय कॉलेज एसआरसीसी, तो उसमें प्लेसमेंट्स में अच्छी कंपनीज आती हैं, तो अच्छी जगह मेरी हो गई। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बात मेरे मन में आई कि मुझे देश सेवा के लिए, लोगों के लिए कुछ करने के लिए सिविल्स में जाना चाहिए। बट जब इसके बारे में और मैंने डिस्कस किया परिवार के साथ में, तो हमारी फैमिली में कभी कोई गया नहीं था। तो इट वाज लाइक नॉट एन एक्सेप्टेड काइंड ऑफ डिस्कशन, और उनको लगा कि बहुत अनसर्टिनिटी है, क्योंकि हम डेटा देखें तो मोर देन 10 लाख एस्पिरेंट्स हैं जो प्रीलिम्स के फॉर्म फिल करते हैं, और जो लिस्ट होती है कुछ हंड्रेड्स की सिलेक्शन होती है, उसमें IAS IPS इज़ 250 to 300, वो भी आज, उस टाइम में 2003 में ये लिस्ट का नंबर और कम था। तो उसके बाद में भी फिर अनसर्टिनिटी है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सिलेक्शन हो भी गया तो क्या कार्डर मिलेगा, कहाँ पोस्टिंग होगी, बीइंग अ फीमेल कैसे आप फैमिली लाइफ को सेटल करोगे। एंड एक बड़ा ही हमारी कम्युनिटी है, मैं बनिया कम्युनिटी से आती हूँ, तो मेरे अगर मैं कंपेयर करूँ मेरे जो और फीमेल कज़न्स हैं, तो जनरली ग्रेजुएशन तक उनको पढ़ाई उनकी रही और उसके बाद मैरिज कर दी जाती है। तो इस टाइप का प्रचलन था। तो सिमिलरली मेरे बारे में भी यही था कि ऐसे ही रहेगा कि मैं बेसिक अपनी एजुकेशन कर लूँगी और फिर शादी कर देंगे, क्योंकि एक ये भी नोशन था कि अगर लड़की को बहुत ज़्यादा पढ़ाया तो उसके लिए सूटेबल मैच नहीं मिलेगा। तो 2003-4 की मैं ये बात बोल रही हूँ कि लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ जाएगी तो वो सेटल कैसे करेगी, और एक मतलब एक शुरुआत ही उसकी कहाँ से होगी। तो ये सारे एप्रीहेंशंस थे। बट देन व्हेन आई केप्ट ऑन डिस्कसिंग विद माय पेरेंट्स, स्पेशली मेरे मम्मी पापा, तो उनको लगा कि नहीं, शी इज़ पैशनेट अबाउट इट, एंड प्लस उनको लगा कि भाई बच्चे करते ही हैं, हर साल सिलेक्शन तो होता ही है। पापा ने और भी लोगों से डिस्कस किया, एंड देन ही ऑल्सो गॉट मोटिवेटेड, फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद CS मैंने पहले कंप्लीट किया 2004 में, जून के एग्ज़ाम्स मैंने दिए। उसके बाद मैंने LLB में एडमिशन लिया, क्योंकि पापा ने एक सजेशन ये भी दिया था कि प्लान बी लाइफ में होना चाहिए। बाय प्लान बी ही मेंट कि आपका अगर मेन जो फोकस वाला जो एम है, अगर वो नहीं हो पाता है तो व्हाट इज़ द सेकंड नेक्स्ट बेस्ट विच यू कैन डू। तो मेरा सेकंड नेक्स्ट बेस्ट, मैंने ये सोचा कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करूँगी और साथ में जो देश के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, उसके लिए अपना कोई NGO या सिविल सोसाइटी सेटअप करूं। तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर मैंने LLB में एडमिशन लिया, मेरा लॉ का क्लासेस स्टार्ट हुई, मैंने पार्ट टाइम जॉब भी एज कंपनी सेक्रेटरी स्टार्ट किया, और साथ ही साथ में मैंने सिविल्स की तैयारी शुरू की। तो बेसिकली ये एक जर्नी काफ़ी आई वुड से डिफ़िकल्ट रही, और टाइम मैनेज करना मेरे लिए तीनों चीज़ों के लिए ईजी नहीं था, क्योंकि पढ़ाई सिविल्स की अपने आप में बहुत टायरसम है, बहुत डिमांडिंग है, बहुत सारे घंटे आपको पढ़ने पड़ते हैं, 8 से 10, 12-12 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद में फिर लॉ की भी क्लासेस, जिसमें सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, एंड मेरी पार्ट टाइम जॉब। तो ये इजी नहीं था, बट आई थिंक इट वाज माय डिटर्मिनेशन एंड सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स, माय फैमिली, एंड ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ 2008 बैच में। उसके बाद कार्डर मेरा त्रिपुरा मिला, मणिपुर त्रिपुरा कार्डर हमारा आया, तो मैंने कार्डर ज्वाइन किया, और उसके बाद से कुछ साल, 8 साल लगभग मैं त्रिपुरा में रही। उसके बाद फिर मैंने हरियाणा में इंटर कार्डर डेप्यूटेशन में काम किया। देन आई वेंट बैक टू त्रिपुरा, और अब कुछ टाइम से दिल्ली में हूँ। तो काफ़ी मतलब 2003-4 से लेके अब लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए कि इससे जुड़ी हुई हूँ। प्रिपरेशन की पहले 3 साल, उसको करते करते सिलेक्शन हुआ, फिर ट्रेनिंग में गए, फिर अपना सर्विस किया। तो बहुत इजी नहीं था, बट आई वुड से इट हैज़ बीन अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी पर्सनली एंड प्रोफेशनली बोथ। मैम, हाउ इट फील्स लाइक टू बी ए ब्यूरोक्रेट, क्योंकि काफ़ी लोग इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, एंड दिस डेज वी आर सीइंग कि लाखों एस्पिरेंट्स हैं, तो इज इट ट्रूली वर्थ इट? सी, जो आपका क्वेश्चन है, इज इट ट्रूली वर्थ इट, इसका तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म आई वुड से, कि वर्थ इट आपको क्या चीज़ वर्थ लगती है ना। अगर कोई एस्पिरेंट इसमें ये देखता है कि, जो कि आजकल अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया जो हम देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई भी कर देते हैं, कि वो रील्स ऐसी दिखा रहे हैं कि कलेक्टर है, कलेक्टर की गाड़ी के आगे 4 गाड़ियाँ जा रही हैं, उसकी गाड़ी के पीछे 4 गाड़ियाँ जा रही हैं। एक पुलिस कमिश्नर है तो ही इज़ हैविंग अ लॉन्ग एस्कॉर्ट एंड सिक्योरिटी अलॉन्ग। सो
it is not mandatory that you will get all this, because it is only situation specific and it is only relating to the position and the post which you hold. और ग्लोरीफाई करके अगर आप उस चीज़ों के लिए अगर आप जा रहे हो तो उसके लिए तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, देन इट इज़ डेफिनेटली नॉट वर्थ इट. इफ़ यू आर गोइंग इन फॉर अ जेन्युइन इंटेंशन ऑफ डूइंग समथिंग गुड फॉर द पीपल, कि आपको जो अथॉरिटी मिलेगी या आपको जो एक उस पोस्ट से या पोजीशन से जो एक एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, जो आप उसके जो स्टैट्यूट है जो गवर्न करते हैं उससे जो आप पावर डिराइव करोगे, अगर उसको आप सही हित में लोगों के लिए अगर यूज़ करके कुछ चेंज लाना चाहते हो, देन दिस सर्विस इज़ फॉर यू. बट इफ़ यू वांट टू सी योरसेल्फ ग्लोरिफाइड इन द कंटेक्स्ट ऑफ what the media projects now, which is to a large extent false, I would say, which is misleading, तो उसके लिए बिल्कुल भी ना आए. तो इसीलिए एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है आपका इंटेंशन, आपका लक्ष्य, आपका विजन एंड आपका एम फॉर बीइंग, आपका रीज़न फॉर बीइंग इन सिविल सर्विसेज शुड बी क्लियर टू यू. मैम दूसरा जो आप बता रहे थे लाइक प्लान बी जो आपने रखा कि लाइक आप एलएलबी कर रहे थे, सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम एस्पिरेंट एंड मैं यूपीएससी के अटेम्प्ट्स देता हूँ एंड मेरा नहीं होता है, तो एट द एंड सोसाइटी विल लुक अप टू मी लाइक इफ आई हैडंट ट्राइड इनफ, तो इट विल मेक हार्डर फॉर मी टू कोप अप विद फेलियर्स. तो हाउ टू डील विद दैट? सी सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो एक ये है जो आपने बात बोली सोसाइटी की, कि सोसाइटी आपको कैसे जज करती है. तो इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू थिंक अबाउट दैट हाउ इज द सोसाइटी जजिंग अस? वॉट यू आर डूइंग इज फॉर यू, वॉट यू आर डूइंग इज फॉर योर फैमिली, वॉट यू आर डूइंग इज फॉर योर क्लोज फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स. और वो बहुत लिमिटेड लोग हैं सबके जीवन में जो आपको समझते हैं, जो आपकी खुशी से खुश होते हैं, आपकी दुख में आपके साथ खड़े होते हैं और आपकी समस्याओं में आपकी मदद करते हैं. और बाकी जनता तो बहुत है जिनको कोई मतलब नहीं है. आप अगर सक्सेस पा लोगे तो वो ताली बजाएंगे, अगर आप फेल हो जाओगे तो वो कहेंगे अरे ठीक से ट्राई नहीं किया होगा, या ये तो इसकी तो बस की नहीं था, तो ये गए ही क्यों, क्या इन्हें पता नहीं था. तो माई पॉइंट इज़ कि वाई शुड वी बॉदर अबाउट दोज पीपल, those second set of people? We only should be concerned about the first set of people who are our own, on whom we have a right, and on us they also have a right. This is very important for us to understand. और जब हम मेहनत कर रहे हैं, जब हम अपना 100% दे रहे हैं, तो एक ये भी बात है स्टूडेंट से मैं एक बात ये भी हमेशा डिस्कस करती हूँ कि फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग. फेलियर शुड give you some lesson. स्वामी विवेकानंदा जी, अभी हमने उनका जन्म जयंती सेलिब्रेट किया ऑन नेशनल यूथ डे 12th of January. That day, just one day prior to that, on 11th Jan, I was at IIMT Nagpur for one TEDx talk. तो उनका जो कोट है उस कोट से मैंने शुरुआत की. It is important to take risks in your life. He very well said that it is important to take risk in your life. If you achieve, if you win, you will lead. If you win, you will lead. And if you lose, you can guide. ठीक है, तो if you lose, you can definitely guide. You can guide yourself that why did I fail? And you can also guide and help and support others also कि why they should not commit these kind of mistakes. So मेरा भी जो सिलेक्शन हुआ सिविल्स में वो सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जब प्रीलिम्स दिया, मेंस लिखा, मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया. एंड फ्रैंकली मेरा उससे पहले तक स्कूल में, कॉलेज में मैंने कभी फेलियर फेस नहीं किया था. एकेडमिकली आई वॉज अ काइंड ऑफ अ स्टूडेंट हु वुड हैव ऑलवेज मोर देन द एवरेज मार्क्स. और मुझे ये थोड़ा सा रहता था कि टॉप में, टॉप 3 में, टॉप 5 में मेरा हमेशा रैंकिंग रहे. और CS में भी मेरा ग्रेड आया था, LLB में भी आई हैड स्कोर्ड गुड मार्क्स. तो जब वो फेलियर हुआ तो कुछ दिन तो आई कुड नॉट एक्चुअली टेक ऑन मी कि वाई डिड आई फेल, हाउ कुड दिस हैपन टू मी, मतलब मेरे साथ ये कैसे हो गया. देन व्हेन द मार्कशीट्स केम एंड देन व्हेन आई एनालाइज्ड, आई एक्चुअली सॉ दैट माई मार्क्स इन द GS जनरल स्टडीज़ वॉज लेसर एज कम्पेयर टू द ऑप्शनल.
और ऑप्शनल मेरे जो थे कोर लिया था मैंने, कॉमर्स था एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नया सब्जेक्ट था मेरे लिए, बट कॉमर्स में मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज आई हैड रेड इट थ्रू आउट माई ग्रेजुएशन, CS भी किया था। तो GS मेरा इसलिए भी मुझे लगा कमज़ोर है क्योंकि मैं 10th के बाद से आई वॉज आउट ऑफ टच फ्रॉम हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी। तो मैंने फिर अपने मन में यही ठाना कि मैं जिसकी वजह से फेल हुई हूँ, अब ये दोबारा से ये रीज़न नहीं बनना चाहिए। तो देन आई very consciously made it a point that I have to improvise on my general studies score, and मैंने उसको अपना जो एफर्ट था मैंने उसको इस तरीके से किया कि जब मेरे जब मार्कशीट आई, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा रैंक 13th आया अपने बैच में एंड आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन माई मेन सब्जेक्ट रिटर्न में। एंड व्हेन माई मार्कशीट वॉज रिलीज्ड आई वॉज हैप्पीली डिलाइटेड टू सी दैट मेरे जो मार्क्स हैं इन द जनरल स्टडीज़ दे वर हायर देन माई मेन सब्जेक्ट। तो जो मेरा कोर रहा इतने साल उससे ज़्यादा मैंने स्कोर किया जनरल स्टडीज़ में। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर कॉन्शियसली एफर्ट लेके मैंने लगाया एंड आई लर्न फ्रॉम माई फेलियर। तो फ्रेंड्स, एक तो ये बात है कि फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। इफ़ यू फेल you have to analyze why did you fail and then how can you take that corrective action। ये बात मैं सिर्फ बोलने को फ्रेंड्स नहीं बोल रही हूँ, ये बात एक्चुअली में आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं इस धरती पे, किसी ने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको हासिल नहीं किया है। वी हैव रेड अबाउट द स्टोरी ऑफ मिस्टर थॉमस एडिसन, हाउ ही इन्वेंटेड बल्ब, हाउ मेनी टाइम्स डिड ही फेल, हाउ मेनी टाइम्स न्यूटन हैड टू जस्टिफाई हिमसेल्फ व्हेन everybody was questioning how is the apple falling, and he was trying to give the gravitational force theory to us. So people will not believe you, but you have to believe in yourself. If you do not believe in your own self, nobody else will. तो इसलिए दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, वो मैटर नहीं होना चाहिए। जो आपके खुद के अपने लोग हैं, जो आपके लिए खड़े हैं, उनको अपने साथ लेके चलना ज़रूरी है। उनका मार्गदर्शन, उनका प्यार, उनका अफेक्शन और उनकी गाइडेंस वो हमारे पास में हमेशा रहे। दैट डेफिनेटली वी शुड ट्राई। So the funda is you have to constantly improve in your life. Yeah, that is always, we all say that learning is a continuous process. I learn even today. I am learning even from this conversation. Right? सुबह हो सकता है मैं अपने घर में बच्चों से भी कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, because they are of the young generation. So they use, my daughter especially, she is in class 7. She uses many terms which I don't know, and I think I will only get to know through her. Gen Z terms. Yes. तो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, and how the teachers are now, the teaching pattern has also changed a bit. How they are doing their courses online. हमारे टाइम में ऑनलाइन कुछ था ही नहीं. There was nothing kind an online course, और उनका होमवर्क भी ऑनलाइन अपलोड होता है, they have to do and then they have to submit also. So many things have changed and it's nice to see. Yes, ma'am, there is a generational change. यहीं से I want to ask you, since you have entered into the services, India has undergone a tremendous change. Like 2008 में you have joined, and उस time पे we had a recession, global recession. Right. And उसके बाद भी we are still so strong. So can you please tell us about the journey of India with reference to your journey? Like you have seen things on ground, and now today we are here. See, मेरा तो सर्विस एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली दो रीजन्स में मैंने काम किया। तो त्रिपुरा में काम किया जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बहुत ब्यूटीफुली कार्व्ड आउट स्टेट है, और क्योंकि मैं त्रिपुरा में रही तो मुझे देश का वो पूरा ही एरिया, तो एक्सेप्ट मणिपुर, आई हैव विजिटेड ऑल अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सिक्किम, अरुणाचल, आसाम एंड मेघालय, मिज़ोरम, मैंने सारी स्टेट्स विज़िट की हैं। मणिपुर एक स्टेट है जो मैंने अभी तक विज़िट नहीं कर पाई हूँ। एंड त्रिपुरा के बाद मैंने हरियाणा में काम किया, और जन्म मेरा दिल्ली का है, तो आई हैव सीन द नॉर्दर्न पार्ट ऑल्सो, बोथ वर्क वाइज एंड ऑन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो। सो वॉट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज़ कि सर्विसेज में आने के बाद तो आपका जो ओरिएंटेशन है वो ऐसे भी बहुत डिफरेंट हो जाता है, द वे यू लुक एट थिंग्स, बिकॉज यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, एंड वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू राइट, whatever I converse with people, they will assume that it is coming from some authority.
because I represent government. So जो चेंज है, अगर हम ग्लोबली बात करें, तो now India is a global partner in all major multilateral and international forums. 2 years back, in fact, September 23, India very proudly hosted the G20 presidency, जिसका मेन समिट न्यू दिल्ली में हुआ था, एंड द रीजनल जो कॉन्फ्रेंसेस थी वो ऑल ओवर इंडिया में हुई. इवन अगरतला हैड होस्टेड अ कॉन्फ्रेंस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इवन हरियाणा also had hosted a conference. So the way now India is getting projected globally, it is very inspirational, I would say, and it is highly remarkable. And I would also not hesitate in saying that our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, the way his presence is being respected now at the global forums, when he speaks, irrespective of the language which he uses. He might be speaking in Hindi or he might be speaking in English, but the way he addresses and the way India is, putting its front strongly on all these forums, and जितना भी हमने देखा, विपदाएं जो आई हैं, क्राइसिस जो आए हैं इंटरनेशनली, फॉर एग्जांपल COVID-19 पेंडेमिक, we saw how India helped the other countries through their COVID Maitri diplomacy. तो कोविड वैक्सीन जो हमने, कोवैक्सीन एंड जो अदर वैक्सीन थे जो हमने वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत बाकी कंट्रीज़ को सप्लाई करी, तो दैट वाज अ रिमार्केबल स्टैंड टेकन बाय आवर कंट्री की वैक्सीन मैत्री में ना ही सिर्फ हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, बट हम जो कंट्रीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं उनके लोगों के लिए भी हम एज एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी in such a crisis situation we helped. So this is like every aspect you see, whether it is economic, whether it is social, whether it is political, whether it is geopolitical, whether it is cultural, India is proving and becoming a global leader. We see, if we talk about cultural, so गीता महोत्सव जो है हरियाणा में, क्योंकि मैंने काम किया है कुछ टाइम, तो जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है दैट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली नाउ, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, ब्रह्म सरोवर के पास में वो उसको स्टार्ट किया गया, और अब वो इंटरनेशनल लेवल में उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है. सो पीपल आर अडॉप्टिंग योगा, पीपल आर अडॉप्टिंग आवर वेदास. People are coming to India for religious tourism, spiritual tourism. People are coming for, this mindfulness, meditation. तो ये तो हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो एक ट्रेडिशन है, this is also getting adopted. And Mr. B.V.R. Subramaniam sir, he in his very important, I was reading one of his presentations, which is there on the Karma Yogi portal. So B.V.R. Subramaniam sir has so much clarified in the way how India is going to become a Viksit Bharat. We are all talking about India becoming a developed country, India becoming a Viksit Bharat in 2047. How India is going to achieve that? That is very well said. एंड उसमें हमारा जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, हमारे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, हमारे जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं, हमारे जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं, all of these have a very important role to play. And I am very much confident that with the participation, and it is not only the responsibility of the government, it is also the responsibility of the people, it is also the responsibility of the corporate sector, the public at large, to help and contribute. Yes, ma'am, I fully agree with you. Like the last decade was fully digital transformation. We have Yes, seen. I did not mention about this, the digital transformation UPI, which is coming. which is globally appreciated by everyone. Yes. Even in the month of November, I had the opportunity of visiting London on an official conference only. And therein, I visited two universities, University of Westminster and Metropolitan University.
Therein I interacted with few of the professors, the policymakers, and also the students who were studying. So they were actually there was a discussion on the projects based management in India, and which country has higher scale projects than our country, whether we talk about the railways, whether we talk about the civil aviation. And in that, the discussion on UPI also came in, and they were very much curious to know about how this is happening. And how then I, with my limited knowledge about this, because I'm not an expert in this, so I actually shared that it started from long time back when I was in the district. It started from the DBT, the direct benefit transfer scheme, for the flagship programs like Manrega, like PM Awas Yojana, all these schemes, like the health cards under Ayushman Bharat. So how it started, and then now it has percolated down to such an extent that everybody has money in their phones. So you do not need to carry cash, you do not need to carry even a credit card. You have a phone and an account which is linked to one of these apps, Paytm or whatever. And then even every day almost I'm using that, because after my walk in the Lodi garden, I have either coconut water, nariyal pani, or fresh juice. So I pay 60, 70, 80 rupees daily through that UPI app only. So it is true, so remarkable to see that rickshaw walas, that the street vendors, nariyal pani wale bhaiya, everybody is using this. So this is, yes, the digital transformation, and this also leads to transparency. And when we talk about digital initiatives in the government, it enhances the accountability, it enhances the transparency, and it makes the services delivery more faster, more time bound, and as we say, the Right to Services Act. So they actually get the mandate which is mentioned in the Right to Services Act. These digital initiatives actually help in ensuring and adhering to those guidelines. Do you remember your first posting? You discussed a lot about India, but do you remember? So my training was in West Tripura district. Way back in 2009 June I had joined. That was my training time in West Tripura district in Agartala. And after that, my first independent posting was in Ambasa subdivision, which is in Dhalai district, Tripura. I very well remember. Not only first posting. Till date, I remember all my postings. Thankfully, my memory has not faded away that much. I even remember few of my school days also, and college days, and my preparation days. And so my memory till now has been quite supportive. The reason why I asked this question is because you are from Panipat, Haryana. तो वहाँ पे जब आपकी पोस्टिंग हुई तो क्या आपको challenges face हुए, be it linguistic barriers or any challenges that you faced there? Yes, linguistic barrier तो एक रहता है, वो तो मेरे साथ ही नहीं. सपोज कोई नॉर्थ के बेल्ट का अगर कोई ऑफिसर साउथ में सपोज जाएगा, इवन कर्नाटका फॉर दैट मैटर, विच इज़ नॉट एक्सट्रीम साउथ, या इवन हम भी अगर हरियाणा से अगर मेरी पोस्टिंग महाराष्ट्र में भी हो जाए, तो लैंग्वेज तो नहीं सीखनी ही पड़ती है, वो तो सिविल सर्विसेज में है ही. स्पेशली एटलीस्ट द IAS IPS ऑफिसर्स do have to learn the languages. The reason being that communication is the key. If you want to be an effective officer, you have to communicate in their language. तो मुझे ये बात क्लियर थी कि मेरा त्रिपुरा काडर है और मुझे वहीं रहना है. और वहाँ पे बेसिकली इट इज़ अ ब्यूटिफुल मिक्स ऑफ द बंगाली एंड ट्राइबल पॉपुलेशन, even though Bengalis are a majority. So that is why the Bengali speaks the Bengali language, and tribals, maybe there are 19 major tribes and then sub-tribes, and in the major tribes Kokborok is a language which is being spoken. तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट बंगाली तो मुझे सीखना ही है. तो मैंने ट्रेनिंग के टाइम से ही, जब मेरी त्रिपुरा में ट्रेनिंग के लिए जब मैंने ज्वाइन किया, उस टाइम से ही आई मेड अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ लर्निंग बंगाली. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज दैट देयर वाज अ लेडी हु वाज इन द क्लरिकल स्टाफ. तो मैंने एक्चुअली अपने ऑफिस में बोला कि भाई मुझे लैंग्वेज सीखनी है, अकेडमी में सिखाते हैं
during our training Lavasna, during our phase 2 when we get the cadres, during that time, sorry, phase 1. So during phase 1 we get the language classes, but they only teach the script, क्योंकि वो टीचर हैं तो लिमिटेड टाइम है एंड दे हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, सो दे टीच बेसिक स्क्रिप्ट्स, वर्ड्स, अक्षर, सेंटेंसेस. तो मैंने वो बेसिक तो एकेडमी में सीखा, बट मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी स्पोकन लैंग्वेज की. हाउ डू आई कम्युनिकेट? तो आई रिक्वेस्टेड देम कि मुझे आप लोग सीखने में मदद कीजिए. तो फिर एक लेडी वहाँ पे पोस्टेड थी कलेक्टर ऑफिस में. शी वॉज फ्रॉम द क्लरिकल स्टाफ, एंड देन स्टाफ ने बोला कि मैम शी कैन हेल्प बिकॉज शी इज़ गुड इन रिटन बंगाली ऑल्सो एंड स्पोकन बंगाली ऑल्सो. तो देन फिर मैंने उनसे कुछ इवनिंग में क्लासेस लेना स्टार्ट किया. एंड उसके साथ साथ प्रैक्टिस मैंने कैसे किया, प्रैक्टिस में ऐसे करती थी कि मैं जब भी फील्ड में जाती थी या इवन ऑफिस में भी मैं अगर लोगों से मिलती थी, आई ट्राइड माई बेस्ट टू स्पीक इन बंगाली, क्योंकि ये तो था ही कि ओवरनाइट कोई सीख नहीं जाएगा एंड यू हैव टू अडॉप्ट अ न्यू डायलेक्ट, न्यू लैंग्वेज, न्यू अल्फ़ाबेट्स, प्रोनाउंसिएशन इज़ डिफरेंट. तो आई मेड इट अ पॉइंट कि धीरे धीरे करके मैं सीख जाऊंगी. तो लैंग्वेज में मेरा कमांड ठीक ठाक हो गया था. एंड ड्यूरिंग माई ऑल माई पोस्टिंग्स आई जनरली यूज्ड दिस लैंग्वेज ओनली. एंड कल्चरली फूड हैबिट्स सब डिफरेंट होती हैं. लाइक आई एम अ वेजिटेरियन. त्रिपुरा में ज़्यादातर लोग दाल भात माछ खाना पसंद करते हैं. दे ईट फिश, राइस एंड दाल. तो वो थोड़ा सा ये है कि एडजस्ट करने में थोड़ा इशू आता है, बट देन यू फाइंड आउट वेज हाउ यू एडजस्ट. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि आपको अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट कराना, ढालना कि भाई अब आपको यहाँ रहना है. प्लस मैं कभी भी हॉस्टल में नहीं रही थी. एक मेरे साथ एक ये भी आई वुड से एक इनहिबिशन मेरे अंदर था कि लबासना मेरे लिए फर्स्ट हॉस्टल था. आई नेवर स्टेड इन अ हॉस्टल. मेरी पढ़ाई सारी जो हुई घर में रह के हुई. इवन कोचिंग भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ली. सो आई ऑलवेज हैड दैट प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट. सो लबासना मसूरी वॉज माई फर्स्ट एंड द ओनली हॉस्टल विच आई हैव हैड इन माई एंटायर लाइफ टिल नाउ. उसके अलावा मैं कभी हॉस्टल में रही नहीं हूँ. और उस वजह से फिर वहाँ थोड़ी शुरुआत में ये आई कि अकेले रहना है एंड सब सीखना है. तो लोगों ने फिर बहुत सपोर्ट किया. मेरे जो ऑफिस का स्टाफ था, वहाँ के जो लोकल लोग थे, दे सपोर्टेड. एंड आई थिंक कि वंस यू स्टार्ट जेलिंग देन दीज इनिशियल थिंग्स गो ऑफ. आप एक बार बात करना शुरू करें, लोगों से मिक्स होना शुरू करें. एंड प्लस हाउ यू कम्युनिकेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कि वो एक कंफर्ट लेवल अगर आपका वहाँ के जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है, स्पेशली लाइक जो आपने पहली पोस्टिंग की बात की, तो एज SDM यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो आई यूज टू बी रेगुलरली इन फील्ड चेकिंग द PDS शॉप्स एंड चेकिंग the revenue records, how the tehsils are working, how the mutation and all these things are getting done. So it was a good exposure for me, I would say. रिमोटनेस थी एरिया की. वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो वो ये था कि 5 बजे के बाद में आपको ROP मूवमेंट में ही जाना पड़ेगा. तो ROP मूवमेंट इज़ रिस्ट्रिक्टेड पेट्रोलिंग, जिसमें आफ्टर 5 o'clock you cannot move just like that. You have to inform police and the police escort will go. And it was not only for the officers, it was for the general public also. Like if you have to cross from one district to another, there is a convoy in which only your vehicle can go, and then that convoy will only pass. Because just on those years, insurgency had just खत्म हुआ था. So there was this kind of peace truce between the government and the insurgents. जो मिलिटेंसी रही है वहाँ पे भी त्रिपुरा में बहुत हाई नहीं थी, बट फिर भी थी. देयर वर सम ग्रुप्स विच वर एक्टिव एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. सो इसके लिए वो लॉ एंड ऑर्डर को देख के वहाँ पे हमेशा से ही सिक्योरिटी का एक कंसर्न रहता था. तो इसकी वजह से ये सब हमें भी फॉलो हमें करना पड़ता था.
So that was also a new experience for me. I have read an article, I guess उसी टाइम की बात होगी, like you are posted in Dhalai and with the help of BSF you made the essential services providing to the public, and you were in a bureaucratic machinery, and partnering with BSF, that was a totally different thing. So if you can share the incident with us. वो ऐसा था एक्सपीरियंस मेरा कि जब मैंने टूरिंग स्टार्ट की सब डिवीज़न की, तो आई ऑलवेज़ यूज़ टू मेक अ पॉइंट कि मेरे सब डिवीज़न में रिमोटेस्ट एरियाज़ कौन से हैं जिससे लोग, मुझे लगता था कि मेरे पास नहीं आ सकते हैं, ऑफिसर्स के पास नहीं आ सकते हैं, तो वो मैं विज़िट करूं। तो व्हेन आई स्टार्टेड टूरिंग, तो आई लोकेटेड सम हैबिटेशंस जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन के द्वारा इनहैबिटेड थी, एंड सो इन लोकल लैंग्वेज, इन ट्राइबल लोकल पार्लेंस, दे कॉल देम पाराज। तो वो जो पाराज थे, तो वो कुछ ऐसे थे, आई थिंक 7 और 8 पाराज, जिसमें यू हैव टू क्रॉस रिवुलेट्स, यू हैव टू वॉक डाउन ऑन फोर्ट एंड यू हैव टू क्रॉस रिवुलेट्स, जिसको हम बंगाली लैंग्वेज में छरा बोलते हैं, और आपको वो 8 से 10 किलोमीटर क्रॉस करके जाना है, एंड देन यू आर रीचिंग टू दैट हैबिटेशन। तो मैं सबसे पहले मैंने मालदापारा में विज़िट किया, तो जहाँ पे आई थिंक 250 या 260 टाइप का, मुझे रफली फिगर याद है, इतने लोग थे। तो जब मैंने देखा कि वहाँ पे स्कूल बना है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आंगनवाड़ी सेंटर है, हेल्थ PHC है, वेटनरी सेंटर है, बट वो सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। वो चल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वहाँ जो स्टाफ पोस्टेड है वो आ ही नहीं रहा है। अब वो क्यों नहीं आ रहा है, मैंने अपने लोकल जो वहाँ BDO थे उनसे पूछा, जो और ऑफिसर्स थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैम, सो दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट, एंड ह्यूमनली यू ऑल्सो थिंक कि डेली आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और 8 से 10 किलोमीटर वन साइड यू हैव टू वॉक ऑन फुट, तो यू विल ऑल्सो थिंक कि टू गो और नॉट। तो फिर हमने वो जो आपने BSF वाली बात बोली ना, कि त्रिपुरा में एक्चुअली इंडिया का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश है, दैट इज़ विद त्रिपुरा, तो वहाँ BSF की डिप्लॉयमेंट काफ़ी हाई है। तो मैंने फिर वहाँ के जो कमांडेंट थे, वहाँ के जो इंचार्ज थे उस एरिया के, उनसे बात की, बिकॉज दे हैव अ बैरक सिस्टम, तो वहाँ क्योंकि उनके जो जवान हैं वो रहते हैं वहाँ पे। तो हमने फिर वहाँ पे बात करके हमने ये कोशिश की कि यहाँ पे जो स्टाफ पोस्टेड है उनको वीक में 5 डेज़ वहाँ पे रहने का वो फैसिलिटी दे दें, और वीकेंड पे ये लोग वापस आ जाएं, एंड देन दे गो बैक अगेन। ओके। तो जब ये होना शुरू हुआ, तो वी स्टार्टेड, वी सॉ एक्चुअली कि मंडे टू फ्राइडे द पीपल आर गोइंग, स्कूल इज़ वर्किंग, आंगनवाड़ी सेंटर इज़ वर्किंग, तो एटलीस्ट कुछ तो हुआ। बिल्कुल बंद होने की जगह में एटलीस्ट वीकली उसमें चलना तो शुरू हुआ, एंड दैट वाज एक्चुअली, आई वुड से, वन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेशन, दैट नोबडी टोल्ड व्हाट इज़ टू बी डन, it is only a thought process, it is only a brainstorming of what can be the solution, and it could not have been possible without their support। तो उनके भी थोड़े बहुत जो काम थे BSF के, जैसे उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन से काम रहता है अपने जवान्स के लिए, तो वो ये है कि एक म्यूचुअल एक हो जाता है कि ठीक है, आप हमारी ये हेल्प कर दीजिए, हम आपको इसमें सपोर्ट करेंगे, और वो लोग भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। So it is more of, I think, a mutual understanding, a cooperation, a collaboration, a negotiation, I would say, in a positive way. But the way you took lead is truly appreciable. If you could share more stories with us, like where you feel like you made a significant impact in people's life. अंकित, एक्चुअली हमें क्या है ना, अब मेरे को ये लगता है इस पोजीशन में आगे अगर मैं बहुत ज़्यादा ऐसे अपने बारे में बोलूं, तो इट विल लुक लाइक अ सेल्फ ब्रैगिंग, दैट आई नेवर वांट टू डू। नो मैम, नॉट एट ऑल। तो वो आई नेवर वांट टू डू ये है कि आई कैन ओनली से दैट वेरेवर आई हैव गॉन, सो आई ऑलवेज ट्राइड कि आई शुड बी एज एन ऑफिसर एक्सेसिबल टू पीपल, क्योंकि सबसे बड़ा एक जो ग्रीवांस रहता है लोगों का कि अफसर से मिला ही नहीं जा पा रहा है, कि अफसर से मिल ही नहीं पा रहे। तो मैं यंग ऑफिसर्स को भी जब भी मैं गाइड करती हूँ, वेन एवर आई स्पीक टू देम, आई ऑलवेज टेल देम वन थिंग, दैट ट्राई एंड बी एक्सेसिबल टू द पीपल। आप हो सकता है वो आपके पास ग्रीवांस लेके आएँ और आपको पता है वो काम नहीं हो पाएगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ एन अपील कि आप उनसे मिल लिए और आपने 2 मिनट उनसे बात ही कर ली, तो उनके लिए वो ही एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है कि येस, द ऑफिसर मेट
एंड द ऑफिसर सेड दैट ही और शी विल ट्राई। कई बार सिस्टमिक लिमिटेशंस इतनी होती है या वो काम का प्रोसीजर इतना लंबा है दैट इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन अ टाइम बाउंड मैनर और इट विल टेक मोर टाइम, एंड देन उनकी एक्सपेक्टेशन है कि कल ही आ जाए। फॉर एग्जांपल सड़क की डिमांड है, तो सड़क की डिमांड तो ओवरनाइट नहीं हो जाएगी ना। आप उसके लिए शॉर्ट टर्म क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, आप उसके लिए मीडियम टर्म क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, आप उसके लिए लॉन्ग टर्म क्या कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ये होगा प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के आप सरकार को फंड्स के लिए भिजवाएं। शॉर्ट टर्म ये हो सकता है कि अगर कुछ और कोई कच्चा रास्ता कोई उसी एरिया में कुछ बना सकते हैं थ्रू सम अदर स्कीम लाइक मनरेगा। गांव में तो हम बहुत किया हमने ये कि पक्की सड़क जब तक नहीं बनती है तो एटलीस्ट मनरेगा से अगर हम ब्रिक सोलिंग रोड बनवा सकते हैं, provided the villagers agree, provided it is within the norms of the act and the rules, then we can do। तो ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा वो अपना अप्रोचेबिलिटी दिखाना है। यू हैव टू हैव दैट, जो हम बोलते हैं ना, आपने पढ़ा होगा सिटीजन टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो बेसिकली गवर्नमेंट टू सिटीजन गवर्नेंस जो है दैट नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड। एंड आई वुड मेंशन दैट अब जो डिजिटल इनिशिएटिव्स आ गए हैं उसकी वजह से ह्यूमन इंटरफेस डेफिनेटली कम हो गया है। पीपल डू नॉट नीड टू विजिट दी सरकारी ऑफिसेज है ना, मीट ऑफिसर्स, तो वो ऑलरेडी ह्यूमन इंटरफेस कम हो चुका है। लेकिन जहाँ पे भी है तो कोशिश रहनी चाहिए कि हम मिलें। दूसरा ये है कि वेर एवर आई हैव बीन आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू कोलैबोरेट टू एम्पावर माई टीम्स, एंड वो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज जो है उसी से ही मुझे लगता है कि उनको हम जिम्मेवारी दें, उनको हम वो एम्पावरमेंट करें कि दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे हैव द authority and they should take a lead. I think that is one very important aspect. I always felt you are very approachable, like you are just one text away from me. But ma'am, what I have seen since I am following you for an year, तो मैंने देखा है कि like the way you support NGOs, you have authored a book also. So what inspired you to write a book? बुक तो मैंने अभी नेशन कॉलिंग लिखी, मैंने सितंबर 23 में वो रिलीज़ की। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू सर ने उसको रिलीज़ किया। आई एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर हिज टाइम एंड अप्रिसिएशन। बट आई ऑल्सो राइट टू वॉन्ट टू राइट मोर। मतलब एक ही बुक पे रुकने का मेरा कभी भी मन नहीं था, बट ये है कि इट हैज़ बीन सो बिजी एंड हेक्टिक ऑलवेज दैट आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू स्टार्ट अनदर प्रोजेक्ट। बट आई एक्चुअली वॉन्ट टू डू इन दिस ईयर। मैं सोच रही हूँ इस साल में एक नया बुक मैं अपना एटलीस्ट लिखना स्टार्ट करूँ, इफ़ नॉट पब्लिश एटलीस्ट आई विल स्टार्ट राइटिंग। सम आइडिया एंड थॉट इज़ ऑलरेडी इन माई माइंड। सो बुक का ऐसा हुआ कि मैं सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को लगभग मोर देन, जब मैंने बुक लिखी उसके 2 साल पहले से, स्पेशली कोविड पेंडेमिक जब आया, जब ये ऑनलाइन इंट्रैक्शन स्टार्ट हुई, तब मैंने मेंटरिंग वगैरह स्टार्ट की थ्रू माई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड थ्रू द फिज़िकल तो बाद में हुआ। तो फिजिकल लाइक सम कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑल विच वॉज ओनली टोटली फॉर मी, इट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट आउट ऑफ माई पैशन फॉर गाइडिंग एंड मेंटरिंग द स्टूडेंट्स। सो वो फिर मेरे ख्याल ये आया, मेरे मन में ख्याल ये आया कि लेक्चर्स और ये सब तो मैं लिमिटेड ही जगह कर पाऊँगी एंड ओनली दो स्टूडेंट्स कैन बेनिफिट। तो देन आई थॉट एक्चुअली जनवरी 23 में दिस थॉट केम टू मी दैट वाई आई कैन नॉट राइट अ बुक। सो देन आई थॉट अबाउट इट एंड कि मैं इस पर एक बुक लिखती हूँ एंड आई विल शेयर माई स्ट्रैटेजी ऑन सिविल सर्विसेज, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसेस एंड आई विल शेयर सम अदर आस्पेक्ट्स which are important for students. So the book title is Nation Calling, but उसमें और भी aspects हैं जो कि students को guide करने के लिए हैं। Like जो आपका एक सवाल था, how to face failure, how to handle failure, how to handle challenges, how to overcome difficult situations, how to achieve success. So उस पर थोड़ा बहुत मैंने उसमें लिखा है और इसी थीम पे मैं आगे अपना नेक्स्ट बुक जो है इसी थीम पे, इसी से रिलेटेड थीम पे मैं लिखना चाहती हूँ एक्चुअली। सो दिस इज़ हाउ, सो मेरा फिर वो सितंबर 23 में बुक रिलीज़ हुआ एंड आई हैव बीन विजिटिंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ फॉर मेंटरिंग द स्टूडेंट्स ऑन लाइफ स्किल्स। कुछ मॉड्यूल्स हैं जो मैं आउट ऑफ माई पैशन एंड माई इंटरेस्ट आई हैव बीन डेवलपिंग। सो इट हैज़ बीन अ नाइस एक्सपीरियंस। और एनजीओ की भी आपने बात मेरे से पूछी, तो एनजीओ का ऐसा है कि मैंने आपको शायद प्लान बी में भी मेंशन किया शुरुआत में
कि if I would not have had been in civil services, so I would have been in the corporate sector and started my NGO. NGO. तो अभी अपना तो स्टार्ट नहीं मैंने कुछ किया है, बट ये है कि मैं मेंटर कर रही हूँ कुछ को, एंड वन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वन NGO, एंड सर्वहितम मानव सेवा संस्थान, जिनके प्रोग्राम्स की डिज़ाइनिंग से लेके एग्जीक्यूशन में मैं इन्वॉल्व हूँ। तो उन्होंने 3-4 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं, दिल्ली बेस्ड हैं वो। वन प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड निडर बेटियाँ, विच इज़ स्पेसिफिकली ऑन सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ऑफ गर्ल्स। हम देखते हैं किस तरीके से क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम हुआ है बट ख़त्म नहीं हुआ है। सो वाई नॉट टू एम्पावर द यंग गर्ल्स हु आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हु आर इन कॉलेजेस, हु आर गोइंग आउट फॉर वर्क। एंड हमने दिल्ली पुलिस के साथ भी NGO ने कोलैबोरेट करने की कोशिश की है, एंड दे हैव गॉट द कोलैबोरेशन ऑल्सो फॉर देयर प्रोजेक्ट। एंड इसी के साथ एसोसिएशन में एक प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली के दिलेर है। बेसिकली इट इज़ एन अवेयरनेस कैंपेन दैट इफ समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग अराउंड यू, यू हैव टू रेज वॉइस, राइट। सो वो उस तरीके का जो है, ये जो सेटअप है, ये दिल्ली में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ में मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन के ऊपर काम कर रहे हैं, विमेन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आई थिंक in whatever capacity there is no end to the good work which we can do, irrespective of what position you are, irrespective of आप स्टूडेंट हैं, आप स्टार्टअप में हैं, कोई प्रोफेसर होंगे, कोई CA होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई IAS ऑफिसर होंगे, irrespective of the profession profile someone is, we should take this social responsibility, I firmly believe, and everyone can contribute in some manner or the other. It is only how we align our personal goals and priorities with the requirements of the society. That is what is most important. Yes, ma'am, exactly. Like you have to pay back to the society at the end of the day. Yes. Apart from this, when I look up to you, like your life, so I feel like okay, we both have 24 hours in our life. But when I look up to you, like you are doing a shoot, you are doing your work, you are traveling, and like so much of things. I have my 2 kids. Yes, exactly. So how do you balance things? And like बच्चों के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान देना है। मतलब अपने आप को भी हेल्दी, फिजिकली, मेंटली भी ठीक ठाक रखना है ना। Ma'am, how do you balance things? Like I wonder sometimes. Like so मैं तो हमेशा कोई सवाल मेरे से पूछता है तो मैं तो बहुत सिंपली ये बोलती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पास भी इतना ही टाइम है जितना हमारे पास है। एंड मोदी जी से अगर हम इंस्पिरेशन लें तो उनसे बड़ा तो कोई इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम्पल आई थिंक है नहीं। द वे ही मैनेजेस सो मेनी प्रोग्राम्स इन अ डे, ही ट्रैवल्स अ लॉट डिस्पाइट हिज एज, एंड मीटिंग्स भी ले रहे हैं, एंड ही इज़ ऑलवेज इन दैट अलर्टनेस ऑफ माइंड। ऐसा नहीं है ना कि आप मतलब यू आर नॉट रेस्टिंग, योर माइंड इज़ नॉट रेस्टिंग, सो ये है कि मे बी life only teaches you how to be that much active or how to balance out things. And I personally feel abhi recently ek debate, I am sorry to, it just reminded me of that, of somebody mentioning 70 hours in a week one should work, or 90 hours in a week one should work, and how do we handle our family life. Somebody that some quote got very much viral, how much time will you stare at your wife? yes, exactly. So it is not about that. I would say ki why are we, is spending time with your family only staring your wife? I'm sorry to say, but that statement might have come out of no intention. वो किसी ने हो सकता है सोच के नहीं बोला होगा, it just came in spur of a moment. But ये बात ना हमें थोड़ा सा अपने जहन में लेके आना है इंडिया में कि हम जितने घंटे काम पे बिता रहे हैं तो क्या वो क्वालिटी आवर्स हैं या हम सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे हैं? आर वी ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट द नंबर एंड द क्वांटिटी, और आर वी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी एस्पेक्ट? फॉर मी क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड व्हेन आई टॉक टू स्टूडेंट्स स्पेशली जो कि एस्पायर कर रहे हैं बड़ा बनना, अपने करियर में आगे बनना, आप भी अभी अपनी ग्रोइंग एज में हो, यू विल ऑल्सो हैव मैनी थिंग्स कमिंग अप इन योर लाइफ,
व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम जो क्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा जो अब साइकोमेट्रिक टेस्ट में उस चीज़ को भी हम मेजर करने लगे हैं, विच इज़ EQEI, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल वेलनेस एंड इमोशनल क्वेश्चंट. तो हाउ मेनी ऑफ अस आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट इट? हाउ मेनी ऑफ अस? मुझे लगता है कि दैट परसेंटेज वुड बी वेरी वेरी लो. एंड द पॉइंट इज़ कि भाग दौड़ में सब इतना बिजी हैं. सुबह 6 बजे से लेके मेरा दिन शुरू होता है. व्हेन आई गेट अप, my kids go to school. After they go to school, I go for my morning walk, and then after 1 hour of my jog, run, whatever I do, and then I have to have my day kick off, and till night, till 10:30, 11, I have things lined up. उसमें टाइम ही नहीं है ना सोचने का. But it is very much important कि we reflect upon जो हमारे इसके इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 जो एस्पेक्ट्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट मिस्टर डैनियल कोलमैन, इफ़ आई कैन रिमेंबर करेक्टली, ही हैज़ मेंशन, विच इज़ सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल अवेयरनेस, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो ये जो एम्पैथी है, ये जो सोशल स्किल्स है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, हम इस पर कितना ध्यान दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन द एंड, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, अगर आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपसे आपको खुशी नहीं मिल रही है, then it is a waste. Then why are you doing this thing? And I'm just reminded of a statement by Mr. Steve Jobs, the Apple CEO. He, in one of his speeches, he was addressing, I think, students only, and he said that for continuously 3-4 days, you ask a question to yourself, that is this the way that I want to die? Is this the way that I want to die? And if the question to this answer, if the answer to this question is a continuous no, 3-4 days is a continuous no, then you are not on the right path. अगर आप इस काम को करते हुए मरना नहीं चाहते हैं, तो इसका मतलब आप अभी काम ठीक कर ही नहीं रहे हैं. So therefore it is important, that we give preference to our emotional wellness, we give importance to our mental health, our psychology, our happiness. ये ज़्यादा ज़रूरी है. Quantity of work versus quality, that we have to prioritize. But still, I believe that Twitter India acknowledged you in the right context. You are a Wonder Woman. That was long way back, 5 years back, March 2019. तो उसके बाद बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं. पर मैम, आपको अपने लिए समय मिलता है? Like, what do you love to do in leisure time? लीजर टाइम फ्रैंकली नहीं होता है, बट जो भी टाइम मुझे मिलता है तो वो यही है कि आई लाइक टू रीड, अपडेट माई सेल्फ, एंड लिखने का मुझे शौक़ रहा है पहले भी. जैसे बुक लिखी मैंने, तो बुक क्यों लिख पाई? क्योंकि थोड़ा थोड़ा लिखने का वो फ्लेयर था. कॉलेज स्कूल के टाइम से मैं स्कूल में भी अपने मैगज़ीन में आई वॉज इन दैट एडिटोरियल टीम. देन कॉलेज में भी मैं थी. देन व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आई यूज्ड टू राइट ब्लॉग्स, and my blogs sometimes they got published in Frontline and The Hindu, letter to editors. So वो letter to editor अगर आप सोचो उस टाइम में 2003-4-5 में अगर Frontline में छपा, हिंदू में छपा, तो you get motivated, है ना. तो वो ये है कि राइटिंग थोड़ा थोड़ा अभी भी मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ, मेरे वेबसाइट पे मैं पोस्ट करती हूँ ऑन सम इश्यूज और वट एवर आई फील लाइक. एंड बिसाइड्स दैट म्यूज़िक इज़ समथिंग विच आई लाइक. सिंगिंग कभी मैंने सीखा नहीं है, बट हाँ फैमिली के साथ कैरियोके पे आई सिंग. आई लाइक अ बिट ऑफ डांस ऑल्सो. सो म्यूज़िक, सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग, राइटिंग, दिस ऑल इज़ लाइक समथिंग विच आई एन्जॉय. एंड यस, मॉर्निंग में मेरा जो अपना टाइम है, जो आपने बोला अपने लिए टाइम जो मैं निकालती हूँ, तो वो थोड़ा सा ये है कि मैं अपना पार्क का, अपना वॉक, जॉग, रन का रूटीन वो मैं जनरली नहीं छोड़ती हूँ. Yes, I have seen a tweet of yours, like I have lost 16 kilos. I was like, damn, ma'am, please give some tips to me. नहीं, वो तो एक्चुअली क्या है कि लेडीज का प्रेगनेंसी बढ़ जाता है. सो आई हैव 2 kids. सो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद वेट वाज क्वाइट हाई एंड आई रीच्ड लाइक 80+.
80 kgs प्लस में जब हो गई थी, फिर उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाता है, बट देन आई गॉट स्टेगनेंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो. एंड समटाइम्स व्हाट वुमेन फील ना कि सोसाइटी भी यही उनको वो कराती है कि नहीं नहीं बच्चे होने के बाद तो बढ़ता ही है. आई अग्री कि बढ़ता है, देयर आर हार्मोनल चेंजेस ड्यू टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बट द पॉइंट इज दैट is it affecting your physical health? Is that weight gain increasing? Is it affecting your normal activities? If it is affecting, then it is not good. Okay. तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा मुझे लगा कि जब मैं 2016-17 में फिर मेरी हरियाणा में पोस्टिंग हुई और फैमिली साथ में थी, तो थोड़ा थोड़ा मुझे लगा कि आई शुड ट्राई नाउ. एंड तब मैंने कॉन्शियस एफर्ट किया थ्रू माई, आई डिडंट जॉइन एनी जिम बट आई डिड aerobics, I did yoga. Zumba is something which I enjoy because it's with music, so with dance and something, and then with my like walk and jog. So I reduced and then I had my second child. उसके बाद again weight went off, अब वो ऊपर चला गया, फिर दोबारा मैंने कम किया है ना. तो फिर बीच में कोविड पैंडेमिक आया, तो दैट ईयर आई गॉट इन दैट पर्टिकुलर ईयर 2021 आई थिंक, जब सेकेंड वेव आया था, तो सॉरी 2020 में, तो आई गॉट बोथ, कोविड भी मुझे उस साल हुआ और डेंगू भी हुआ. तो उसमें भी मेरा, जब मैं डेंगू हुआ तो मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ एंड आई फर्दर मतलब मेरा थोड़ा वेट और इंक्रीज़ हुआ. तो बट ये है कि धीरे धीरे करके मैंने कोशिश किया है कि स्टेबलाइज रहे. आई एम नॉट दैट लीन, मैं उतनी थिन भी नहीं हूँ, बट वॉट आई फील इज़ कि आई फील मोर एनर्जेटिक. वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें करनी है एंड यू हैव टू फील हैप्पी. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, मैं सुबह पार्क जाती ही इसलिए हूँ कि बिना किसी चीज़ के अपने माइंड पे आई हैव टाइम विद माई ओन सेल्फ. एंड बिलीव मी, ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे को बहुत अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, दैट आई एम सोशलाइजिंग, आई एम इंटरेक्टिंग. आई जस्ट वॉन्ट सम टाइम विद मी, विद माई सेल्फ. जो भी थॉट्स आ रहे हैं, लेट देम कम, लेट देम फ्लश आउट, यू नो, नेगेटिव थिंग्स विल गो ऑफ. You'll have the fresh air coming to your breathing respiratory system, so it gives a positive feeling. So this is something which I always advise, especially the young generation also, कि आप लोगों की स्लीपिंग पैटर्न्स इतने डिस्टर्ब रहते हैं, 2-2 3-3 बजे तक आप लोग काम कर रहे हो, सुबह उठते नहीं हो, उठ रहे हो दिन में 12 बजे उठ रहे हो, फिर मंचिंग कर रहे हो, अजीब सा खा रहे हो. गिव मैं फ्रूट जूसेस, मेरे जो नॉर्मल फ्रेश जूस होता है मैं वो पीती हूँ. आई जनरली हैव हॉट वाटर, आई हैव लॉट ऑफ हर्बल ड्रिंक्स. दैट इज़ वाई आई थिंक आई एम एबल टू सस्टेन. नहीं तो किसी को भी थकान हो सकती है, किसी को भी वो दैट काइंड ऑफ फटीग कैन हैपन, बट थैंकफुली आई डोंट फील that much, at least up to this age. So no ma'am, you look so young. Like नहीं, तो वो ये है, वो इसीलिए है क्योंकि ये कॉन्शियसली मैं थोड़ा अपना खाने पे ध्यान देती हूँ. आई ट्राई टू अवॉइड जंक. आई हैव फ्रूट्स, आई हैव न्यूट्रिशियस थिंग्स, आई हैव फ्रेश जूस, आई हैव आंवला, लेमन, और अभी तो सर्दी का सीज़न है तो बहुत अच्छा हरा भी आ रहा है, पालक और साग वगैरह सब आ रहा है. तो ये सब खाइए ना. यंग जनरेशन भी ये फास्ट फूड का जो कल्चर है, एंड यू पीपल आर लाइक जस्ट हुक्ड टू योर लैपटॉप्स, targets, deliverables. I mean, it's too much of stress, I think. I can relate to this. So that is why I'm saying कि मतलब फिर वो मतलब इट एड्स अप टू यू ना. एक्चुअली वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेट हो रहा है. मेरी मम्मी मैंने बोलती कि तो बंदा है या फिर उल्लू है कि लाइक यू वर्क एट नाइट एंड ऑल. हाँ, सो वही, सो दैट स्ट्रेस लेवल गेट्स कंसंट्रेटेड ना. मैम अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक द फैक्ट आई लव अबाउट यू इज लाइक you share your life on social media. Like many bureaucrats avoid to come in limelight, but you share everything about your life. And so what is social media for you? Like is it a tool to show some truth or see actually life का तो मैं नहीं बोलूँगी कि show everything about my life. There are many aspects which may not be known in social media. Okay. And which I will never like also. Okay. To be on social media. So it is not like that. How it started was 2015-16 when I was posted in Tripura. So my team created these accounts, Facebook page actually, Sonal Goyal IAS. So my team which was there in Gomti district. एंड वहाँ पे ये फेसबुक अकाउंट क्रिएट हुआ. तब आई थिंक इंस्टाग्राम नहीं था, इंस्टाग्राम शायद बाद में आया. ट्विटर ऑल्सो आई थिंक इट केम अराउंड दैट टाइम ओनली.
सो वो अकाउंट्स क्रिएट हुए, तो इट वाज ओनली विद द पर्पस ऑफ शेयरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट विद द पब्लिक, which I was also doing as part of my being the collector there. And then it continued during my postings when I came to Haryana. फिर बीच में कुछ कुछ ऐसे इंस्टांसेस हुए जिसमें मैंने देखा कि सोशल मीडिया का हेल्प बहुत आप ले सकते हो इन क्राइसिस. फॉर एग्जांपल केरला में फ्लड्स आए, तो केरला में जो फ्लड्स आए 2018 में, मैं झज्जर में पोस्टेड थी, एंड उस टाइम में हमने सांझी मदद के नाम से हमने एक इनिशिएटिव ऑलरेडी चलाया हुआ था. दैट वाज फॉर टेकिंग द थिंग्स फ्रॉम द पीपल विच आर यूजेबल, क्लोथ्स और वट एवर टॉयज, शूज एटसेट्रा विच दे वॉन्ट टू डोनेट एंड गिविंग टू द पीपल हु आर इन नीड. So that was already there, but then we had a special drive under Sanchi Madad for the Kerala people. So you will not believe कि उस drive के through ही around 90 lakh के आसपास we got money, क्योंकि उसमें सिर्फ हमने through Sanchi Madad we requested the people to donate money also, because that would go to the CM Kerala Relief Fund, the Chief Minister's Disaster Relief Fund or whatever was the name, उसमें जाना था. तो 90 लाख का तो मनी हमने इकट्ठा करके एक ज़िले से दिया, हरियाणा के एक ज़िले ने, झज्जर ने केरला को दिया, एंड 4 ट्रक्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडेड क्लोथ्स एंड ईटेबल्स ऑल्सो विच वर ऑफ लाइक राशन, देन टॉयज, बुक्स, स्टेशनरी, शूज़, जो भी लोग यूज़ कर सकते थे. तो ये सोशल मीडिया की वजह से एम्पलीफाई हुआ, इट गॉट एम्पलीफाइड. स्पेशली similarly during COVID-19 pandemic, we use social media for so much of help. People used to write me across India, कोई छत्तीसगढ़ से कोई लेबर गुड़गांव में, at that time I was posted in गुरुग्राम, तो कोई छत्तीसगढ़ की कोई लेबर गुरुग्राम में है, उनको कैसे हेल्प करना है. पीपल फ्रॉम बिहार, पीपल फ्रॉम उड़ीसा, इवन NCR में भी बेड्स की अवेलेबिलिटी वॉज अ क्राइसिस एक्चुअली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. So how you reach out to people, how you have that network, and people also support each other. तो social media का एक ये advantage है that you can amplify your effort. It is also a tool to disseminate information, to bring the positive things in the public domain. But it also has a negative also of being a hate propaganda. हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे handles हैं जो सिर्फ गंदी चीज़ें ही लिखते हैं. They only will write dirty, they only will criticize, they only will write bad things about officers, bad things about politicians, bad things about everybody. So वो जो है, वो जो नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो भी काफ़ी हैं सोशल मीडिया पे. तो वैसा कंटेंट हम ना कंज्यूम करें. It is also important for us as a user to prioritize what content we are seeing, and I will not hesitate in saying now on social media, on Instagram, Twitter, kind of semi-porn stuff is available. People are posting anything and everything. It actually disturbs me as a woman, it actually disturbs me as a mother, कि मैं कैसे कंट्रोल करूं कि मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो क्या देख रहे हैं. People are posting any kind of content, and what kind of regulation do we have? That is a question we have to ask every one of us. Do we need the police to always say, do we need the cyber police to always say no, you cannot post this kind of a content, just for your views, just for your reshares, just for your number of subscribers, कि आप कुछ ऐसा कंटेंट डालेंगे जो कि मिसलीडिंग है, जो कि फेक है, जो कि डर्टी पॉर्न है, आप ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं just for your shares and likes. It is, I would say, it is immoral. It is against humanity. So just see what you are posting, and we should also, as a consumer, as a user, we also should see कि why we are sharing such content. ठीक है, वो व्यक्ति का डेमोक्रेसी है, उसने डाला है, बट हम क्यों उसको शेयर कर रहे हैं, हम क्यों उसको लाइक करके हम आगे सर्कुलेट कर रहे हैं. So that is also important for us to understand that whatever is available on social media, not everything is right, not everything is with correct intention. We have to demarcate and see only the stuff which is genuine, which is positive, which is inspiring, which is motivating, and which is authentic, which is not the hate propaganda. That only we should post, we should share,
we should see. Exactly, ma'am. Even one of my professors said to me, like, you guys have started treating your minds like dustbins. You are putting everything into it. ब्रेन रॉट एक टर्म शायद स्टार्ट हो Yes, गया है yes, कि yes, new ब्रेन word. इज ब्रेन में आप कुछ भी जो रॉटन है, यू आर फीडिंग दैट ब्रेन विद दैट रॉट. So you are responsible for making your brain to rot. Thankfully, I was not of that category when I was of your age. क्योंकि मेरे पास मोबाइल भी नहीं था. Even during preparation time, I did not have my mobile phone. मेरे को बहुत एंड आफ्टर ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग माई सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन आई गॉट माई मोबाइल फ़ोन. एंड फिर अकेडमी जाने के टाइम में एक डेडिकेटेड मोबाइल फ़ोन मिला जो कि भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड यूज़ होता था बिकॉज द डेटा वॉज नॉट फ्री. जितना डेटा हम यूज़ करते थे उसके हिसाब से बिलिंग होती थी. एंड आई मेड इट अ पॉइंट कि आफ्टर आई एम इन टू सर्विस आई विल बियर ऑल माई एक्सपेंसेज ऑन माई ओन. हाई शुड आई टेक फ्रॉम माई फैमिली. सो इट वॉज अ बिग एक्सपेंडिचर. Yes, ma'am. तो अभी तो फ्री अवेलेबल है, डेटा फ्री है, वाईफाई है, सब जगह वाईफाई है. तो ये हम अपने ब्रेन को वी आर एक्चुअली मेकिंग इट अ डस्टबिन एंड forcing it to become rotten. But ma'am, you have created something impactful like शिखर का सफर. So can you please tell us about that? Like वो कैसे start हुआ? वो भी ऐसे स्टार्ट हुआ कि माई आइडिया ऑफ लाइक bringing positive stories across the board and people who have done good work. So उसका टाइटल भी यही डिपिक्ट करता है कि जर्नी इनटू द पीक. एंड आई ऑलवेज टेल दैट द जर्नी इज़ कंटिन्यूअस. सो बेसिकली अभी लास्ट मेरा एपिसोड जब एम्बेसडर महेश सचदेवा, ही इज़ अ रिटायर्ड IAFS ऑफिसर, उनका एपिसोड अभी रिलीज़ होगा, उनके साथ शूट किया. तो उन्होंने बोला कि सोनल इसको आप शिखरों का सफ़र बोलो. Okay. बिकॉज वंस यू लैंड इन टू अ पीक यू शुड ऑलवेज एस्पायर फॉर अनदर पीक. Okay. तो मैंने कहा सर येस दिस इज एक्चुअली द एम दैट द शिखर का सफ़र हैज़ टू कंटिन्यू. वंस यू अचीव वन लेवल यू हैव टू एम फॉर द अदर. सो मेरा वही पर्पस था कि अभी 3-4 महीने से ही वो स्टार्ट किया है मैंने पॉडकास्ट. और उसमें मैंने पर्सनालिटीज़ फ्रॉम सिविल सर्विसेज, पर्सनालिटीज़ फ्रॉम स्पोर्ट्स, पर्सनालिटीज़ हु आर डूइंग पॉजिटिव वर्क डिस्पाइट द स्ट्रगल्स इन देयर लाइफ, उसको लोगों तक जो एक्चुअल हीरोज़ हैं, जो एक्चुअल चेंज मेकर्स हैं, जो एक्चुअल लीडर्स हैं, उनको लेके आने का मेरा उसमें एक अटेम्प्ट है. Okay, ma'am. Thank you so much for today's your time, and Thank I you, think you are Ankit. making some serious impact in people's lives. So please keep up the great work. I always try to do whatever we can and मैं एंड में यही बोलना चाहूँगी व्यूअर्स को कि किसी ना किसी कैपेसिटी में हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं. ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिविल सर्विसेज में ही आप आओगे तो ही आप कुछ समाज के लिए कुछ हटके कर सकते हो. आप अपना स्टार्टअप कर रहे हो, वो स्टार्टअप में कुछ ऐसा लीड करो कि यू आर हेल्पिंग द पीपल फॉर होम सपोज मार्केटिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन. सो यू मेक देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल. या आप मेडिकल प्रोफेशन में हो तो ठीक है, हॉस्पिटल्स नाउ आर बहुत चार्ज करते हैं, बट एक ऐसा भी कुछ कंपोनेंट हम हमेशा से अपने पास रखें कि वी आर ट्रीटिंग सम पेशेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. So that kind of a compassion, empathy is very much required, and whatever we are doing, why can't we align our personal goals with the requirements of the society? That is a question which we should keep talking to ourselves, and that alignment of personal goals with the requirements of our country, our nation, दैट वुड डेफिनेटली बी हेल्पफुल. और जो हमने बात की विकसित भारत की, जो हम बात करते हैं डेवलप्ड इंडिया की, हम जो बात करते हैं नेशन कॉलिंग की, दैट एक्चुअली नेशन कॉलिंग भी जो मेरी बुक का टाइटल है वो यही है कि दैट कंट्री इज़ कॉलिंग यू. एंड कंट्री इज़ कॉलिंग यू नॉट ओनली अ सिविल सर्वेंट, इट इज़ कॉलिंग यू इन एवरी प्रोफाइल, एवरी प्रोफेशन, एवरी करियर यू एस्पायर फॉर. सो हैव फेथ, हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात व्यूअर्स के लिए यही मैं बोलना चाहूँगी कि ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ. एंड इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ नोबडी एल्स विल. फ्रेंड्स, कीप दिस एज की वर्ड कि हैव द फेथ एंड बिलीव इन योर सेल्फ. एंड इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन योर ओन सेल्फ, कोई आसपास में कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा. एंड आई वुड जस्ट एंड विद द 4 words
विच इज़ माई व्हाट्सएप स्टेटस फॉर मैनी मैनी ईयर्स. Okay. जो आपने भी अगर जो मेरे को व्हाट्सएप अगर आप शूट के बाद देखना, वो है चैलेंज योर ओन लिमिट्स. सो चैलेंज योर ओन लिमिट्स इज एक्चुअली अ टर्म, अ फ्रेज विच आई रोट फॉर माई ओन सेल्फ एंड आई हैव बिन फॉलोइंग इट. कि मेरे जो लिमिटेशंस हैं, मेरी जो क्षमताएं हैं, उसको मैं चैलेंज करती रहूं, रोज़ नया कुछ करती रहूं, रोज़ नया कुछ सीखती रहूं. एंड दैट इज़ हाउ आई कीप माई सेल्फ अलाइव एंड गोइंग. That is how I keep myself going, moving, rocking. Okay, ma'am, you are definitely rocking. So thank you so much for your time Thank and you. sharing your experiences and insights. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.